Good morning to all of you, dear students. As we know, we had completed our first chapter of civics. Okay, I think, and I hope you are studying at your home and read the chapter in between lines. Listen, dear students, you have to read the chapter in between line because of, I think, um, you are reading at your home and उसको read भी करना है because of इन बिटवीन लाइन से क्या है कि आपको सारी चीज़ें जो हैं तब समझ में आएंगी when you are reading in between lines the chapter. Okay, so we are going to start understanding diversity के question answers. Listen, civics में ध्यान रखना. I am first clear that in the NCERT के जो questions होंगे, some questions were doing we are doing both of, but some questions there is activity based questions. Okay, so don't panic and don't think कि सर ये वाला क्वेश्चन हुआ या ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ. So कुछ क्वेश्चंस क्या हैं कि you have to think your own self or on own wisdom which is you read in this चैप्टर. तो जिस चैप्टर में जो तुम पढ़ रहे हो अपने विजडम से अपनी नॉलेज से भी आपको कुछ कुछ आंसर्स खुद से भी लिखने हो सकते हैं. ठीक है. सो जो हम जो हम करेंगे वी विल डू सो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी. Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? So, as you know that there are many festivals which we shared by many members and different regional communities, religious communities are celebrated this festival like Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti. So these are the festivals which is both the regional and religious communities were and are celebrated these festivals. Okay, what do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? So India is a country with a rich heritage of diversity because of, as I told you, कि यहाँ बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे रिलीजियस व्यूज़. ओके, अलग अलग रीजनल के एरियाज़ के लोग यहाँ रहते हैं. सो पीपल हेयर बिलोंग टू वेरियस रिलीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज. देखो कोई महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलता है. दे आर नॉट नो द हिंदी. एंड यहाँ हम लोग हिंदी यहाँ बोलते हैं. नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं वी आर स्पीकिंग हिंदी एंड वी आर नॉट नो मराठी. तो इट इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ आवर इंडिया एंड इट इज़ अ, यही क्या है, यूनिटी है हमारी. पीपल हेयर बिलोंग टू वेरियस रिलीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, wear different clothes, eat have different things, among other diversity. However, despite all these, we are unite together as Indians. We share the same national symbol, national virtue, and feelings. Being an Indian and give us the divine idea of सर्वधर्म संभाव. सो हम ये कहते हैं कि जो हमारा आइडिया है वो सर्वधर्म संभाव का है बिकॉज ऑफ सभी जो रिलीजन हैं वो अपने आप में यूनिक हैं. ठीक है, और सभी को क्या है, रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए. ओके, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन appropriate term to describe India? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? So अगर बुक्स को अगर आप इस बुक को अगर आप इसके फर्स्ट चैप्टर को इफ़ यू रीड सो यू विल फाइंड दैट what is the Nehru said to from his The Discovery of India book. So yes, I believe unity in diversity in an appropriate term of describe India. Diversity India is a large country and people of different parts follow different faiths, speak various languages as I told you. तो यहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं, स्पीक और डिफरेंट फेथ्स हैं. ठीक है, और एंड ईट डिफरेंटली. दिस शोज दैट इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिटी स्प्रेड अक्रॉस इट्स पीपल. यूनिटी डिस्पाइट द डाइवर्सिटी एज इंडियंस वी आर वन. एज एन इंडियन वी आर नो मोर अ गुजराती और अ बंगाली. वी सेलिब्रेट द नेशनल डेज विद इक्वल zeal. हम लोग क्या करते हैं,
नेशनल डे तो हम सभी का एक साथ ही मनता है, रिपब्लिक डे का हम सभी का एक साथ ही मनता है। हम सब सारे फेस्टिवल्स क्या हैं कि अगर बंगाल में कोई हिंदू है या बंगाल में कोई अगर मुस्लिम है या बंगाल में अगर कोई सिख के रहता है, मैनी ऑफ द रीजन रिलीजन से रिलेटेड अगर पीपल रहते हैं, तो उत्तराखंड में रहने वाले लोग भी उसी दिन क्या फेस्टिवल मनाते हैं। सो इट इज़ आर डाइवर्सिटी बट वी आर one. Okay, so Nehru has written in his book The Discovery of India, it was something deeper and within its fold. The vast tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. So ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने बोला था कि जो बिलीफ है किसी भी कस्टम का, किसी भी जो हमें क्या है कि हमें इंकरेज करना चाहिए, ठीक है। ही मीन्स दैट व्हेन वन पॉन्डर ओवर इट डीपली वंस फाइंड दैट इंडिया इज़ नॉट ओनली यूनाइटेड बट इस पीपल ऑल्सो नो हाउ टू एक्सेप्ट अदर कस्टम्स एंड बिलीव्स। सो हमें अपनी कस्टम्स अपनी बिलीव्स को तो रखना ही है साथ में, लेकिन अदर जो रिलीजन के लोग हैं दैट वी have to respect them also, okay, and follow the our जो हमारे जो कस्टम्स हैं उनको फॉलो आप करो, लेकिन दूसरे के कस्टम्स एंड दूसरे के बिलीफ्स एंड दूसरे के लिए जो अदर जो कम्युनिटीज के जो रिलीजन है उसको हमें क्या है हर्ट नहीं करना है, ठीक है। सो डू दिस 1 2 3 and I will one question है, underline the line in the poem sung after the Jallianwala massacre which according to you reflect India's essential unity. So ये है, देखो एक इसमें लाइन है, there is a line that it is tells us about the Jallianwala massacre that the blood of Hindus and Muslims flows together today. So blood, क्योंकि देखो जलियांवाला बाग मैसेसर जब हुआ था तो देयर इज अ जनरल डायर ने क्या किया था कि उसने बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया था और अपने सोल्जर्स से क्या कहा था कि क्या करें, उनको उन पे गोली चलाने के क्या कर दिए थे, ऑर्डर दे दिए थे। सो वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सिख्स, ठीक है, सारे के सारे लोग थे। तो ये लाइन जो बताती है द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे, कि हिंदू और मुस्लिम चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों कि आज क्या है, सबका जो ब्लड है वो एक साथ बहा है। सो तो इट इज़ अ यूनिटी ऑफ द डाइवर्सिटी दैट मेक्स इंडिया डिफरेंट ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको करना है। अच्छा लिसन, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो लास्ट वाला 4th क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट ओनली द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे। इसको ही सिर्फ जो अंडरलाइन किया है इसी का आंसर आपको लिखना है, ओके।